Okay, hello my dear students. So today we are going to discuss illustration number 5 of admission of partner. So let us begin with the question. So as you can see the question here, the following is the balance sheet of Madhuri and Manisha sharing profit and losses in the ratio of 3:2 as on 31st March 2019. So there are two partners, Madhuri and Manisha, who are old partners and sharing the ratio in 3:2 as a profit sharing ratio, that is 3/5 and 2/5. Balance sheet is on 31st March 2019. Liabilities, capital account in Madhuri 80,000 and Manisha 1 lakh. Sundry creditors 60,000, bills payable 10,000. So total liability side is 2,50,000. Asset side building 72,000, plant and machinery 60,000, stock 48,000, debtors 42,000 less RDD 2,000, that is net debtors 40,000. Bank 20,000, furniture 10,000. So total of asset side is 2,50,000. So this is the balance sheet given of the partnership firm. In the partnership firm, Madhuri and Manisha, they both are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Then the adjustments is given. On 1/4/2019, Mohini is admitted on the following terms. So here in this partnership, Mohini has been admitted and there are some terms and conditions. So let us begin with the terms and conditions. Let us read out the terms and conditions. Number 1 is she is to pay rupees 1 lakh as her capital and rupees 40,000 as her share of goodwill. So Mohini has to bring 1 lakh rupees as a capital and 40,000 as a goodwill. Number 2 is the new profit sharing ratio is to be 5:3:2. So here they have mentioned the ratio, new ratio they have mentioned, that is after admission of Mohini, the ratio of the new partners were 5:3:2. That is Madhuri will take 5/10 share, Manisha will take 3/10 share and Mohini will take 2/10 share. Number 3, the assets are to be revalued as under. So they have given your assets. The assets have been revalued. Building rupees 1 lakh, plant and machinery rupees 48,000. Then number 4 is RDD to be increased up to rupees 4,000. So here they have increased the RDD. Then number 5, the old partner decided to retain half of the amount of goodwill in the business. So here the old partners have decided that they have to retain half of the amount into the business. That means half of the amount will be withdrawn by the old partners. Number 6, sundry creditors should be revalued at rupees 66,000. So this is a adjustment given of the partnership firm. So let us begin with the answer. So as you can see on the board, I have prepared a revaluation account, partners capital account in which Madhuri, Manisha and Mohini are partners, and I have prepared balance sheet after admission. Now here they have given in the question balance sheet as on 31st March 2019 and I have prepared the balance sheet after admission. That means the Mohini was admitted on 1st April 2019. So after Mohini's admission, the balance sheet has been prepared, that is balance sheet as on 1st April 2019. Okay, so let us begin with the sum. So first of all, what we have to do is we have to post the opening capital of old partners into partners capital account. Okay, so here I will be posting this partners capital account of Madhuri and Manisha, which is given in the liability side of the balance sheet. So here Madhuri is 80,000. So here I will write partners capital, that is by balance brought down. माधुरी के कॉलम में 80,000 एंड मनीषा के कॉलम में 1 लाख. मोहिनी का तो कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं, बिकॉज मोहिनी न्यू पार्टनर है तो वो एडमिट होगी, तो जब वो कैश लेके आएगी तो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे. ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. अब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है तो सबसे पहला है शी इज टू पे रुपीज 1 लाख एज हर कैपिटल एंड रुपीज 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल. सो क्या करेगी यहां पे, जो मोहिनी है वो 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आ रही है. सो बाय कैश अकाउंट मोहिनी के कॉलम में आ जाएगा 1 लाख रुपीज. ओके, एंड साथ ही साथ मोहिनी गुडविल लेके आ रही है, अपने शेयर का गुडविल लेके आ रही है. वो किसको बांटना है, हमें
ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है। कौन से रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। बट यहां पे ये सम में स्पेसिफिकली ये सम में ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है। तो हमें क्या करना है? सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो अभी यहां पे माधुरी और मनीषा दो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहां पे मैं पहले लिख देता हूं माधुरी का एंड देन मनीषा। अब माधुरी का ओल्ड रेशियो क्या है? यहां पे देख सकते हैं हम लोग बुक में, जो बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट लाइन में बैलेंस शीट के ऊपर दिया है 3:2 है, मतलब 3/5 है माधुरी का और 2/5 है मनीषा का। देन एडजस्टमेंट में इन्होंने बोला है सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 5:3:2, मतलब न्यू रेशियो माधुरी का कितना हो जाएगा? 5:3:2, मतलब यहां पे 5/10 हो जाएगा और मनीषा का 3/10 हो जाएगा। सो यहां पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 5 10s are 50, देन 10 3s are 30, 5 5s are 25, सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहां पे। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा 5/50। देन सेम वे 5 10s are 50, डिनोमिनेटर में सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस कर देंगे। 10 2s are 20, 5 3s are 15, सो 5/50 आ गया यहां पे। मतलब दोनों का यहां पे सेम रेशियो आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा 1/50। 1/50 अगर और इसको मिनिमाइज किया तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा 1:1, मतलब इक्वल। माधुरी और मनीषा दोनों अपना शेयर इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं मोहिनी के लिए। तो अब यहां पे क्या हो गया है? माधुरी और मनीषा इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब रेशियो इनका इक्वल है, मतलब जो भी गुडविल इन्हें मिलेगा, क्योंकि जितना पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उतना उसको गुडविल मिलता है। तो जिसने जितना ज्यादा सैक्रिफाइस किया उसको उतना ज्यादा गुडविल मिलता है। तो यहाँ पे तो दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है, मतलब गुडविल भी यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल कितना ला रही है मोहिनी? 40,000, आप देख सकते हो क्वेश्चन में। सो यहाँ पे गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय गुडविल अकाउंट। So 20,000 for Madhuri, 20,000 for Manisha. Okay? Clear with this? Now, अब इसके आगे क्या बोला है? सेकंड नंबर की तो एडजस्टमेंट रेशियो की थी, वो तो बता दी मैंने आपको। थर्ड एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन बोला है। The assets are to be revalued as under। तो चलो असेट का रिवैल्यूएशन करते हैं। तो असेट का रिवैल्यूएशन करना है, अगर कोई भी रिवैल्यूएशन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बैलेंस शीट में देखो क्या दिया है यहाँ पे? असेट्स आर रिवैल्यूड बिल्डिंग ₹1 लाख। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया है। अभी क्वेश्चन में अगर देखें तो 72,000 रुपीज बिल्डिंग दिया है यहाँ पे। तो 72,000 दिया है और एडजस्टमेंट में 1 लाख है, मतलब ये बिल्डिंग बढ़ गया है। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन असेट देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सो चलो पहले इंक्रीज कर देते हैं। तो बिल्डिंग यहां पे हम लोग असेट में रिकॉर्ड करेंगे। पहले था 72,000 ओल्ड वाले बैलेंस शीट में, अब एड रिवैल्यूएशन 28,000, 28,000 बढ़ गया, तब जाके अभी कितना हो गया बिल्डिंग की वैल्यू? 1 लाख। मतलब पहले 72 था, अब हो गया 1 लाख। तो यहाँ पे 28,000 का इंक्रीज हुआ। अब इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा। 28,000 का इंक्रीज है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन यू हैव टू पोस्ट इट इन क्रेडिट साइड, इफ देयर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन यू हैव टू पोस्ट इट ऑन डेबिट साइड। सो हियर आई विल राइट बाय बिल्डिंग 28,000। ओके, देन आप देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी हमें दिया है एडजस्टमेंट में 48,000 रुपीज, और बैलेंस शीट में देखें तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 60,000 है। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड में 60,000 पहले था, अब एडजस्टमेंट में 48,000 दिखा रहा है, मतलब असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज हो गई तो चलो पहले हम लोग असेट साइड में लिख देते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे? प्लांट एंड मशीनरी दिया है, तो पूरा लिखेंगे नाम हम लोग।
सो प्लांट एंड मशीनरी पहले था 60,000, अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 48,000, मतलब कितना कम हो गया है यहाँ पे 12,000 से कम हो गया है। ओके, अब यहाँ पे एसेट डिक्रीज हुआ, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में वी विल राइट टू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, सो ये भी हो गया हमारा दो इफेक्ट। अब नेक्स्ट है, आपको यहां पे दिया है आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। अच्छा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आरडीडी, आरडीडी में यहाँ पे एसेट साइड में आप देख सकते हो डेटर्स दिया है 42,000, लेस आरडीडी क्या है 2,000, मतलब अभी एडजस्टमेंट में क्या बोला है 4,000 हो गया, पहले 2,000 था अब 4,000 हो गया। तो चलिए इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एसेट साइड में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 42,000 लेस आरडीडी 4,000। सो पहले 2,000 रुपीज माइनस हुआ था, अब 4,000 हो गया, मतलब 2,000 से आरडीडी बढ़ गई है, मतलब नुकसान हो गया है, नुकसान हो गया है 2,000 रुपीज का, लॉस हो गया है, तो आ जाएगा डेबिट साइड में टू आरडीडी 2,000 रुपीज। ओके, सो ये भी हो गया। देन नंबर 5 में दिया द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। तो यहां पे जैसे ही मोहिनी ने गुडविल लाया 40,000, वो हमने बांट दिया माधुरी और मनीषा में 20,000 एज पर दी सैक्रिफाइस रेशियो, बिकॉज न्यू और ओल्ड दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करके 20-20 हम लोग ने माधुरी और मनीषा में बांट दिया है। अब बोला है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो गुडविल को हाफ ऑफ द गुडविल विल बी रिटेन इन द बिजनेस, मतलब आधे ही गुडविल को रिटेन करेंगे बिजनेस में, मतलब आधा क्या करेंगे, लेके जाएंगे। लेके जाएंगे तो सिंपल है एंट्री, यहां पे आ जाएगा एंट्री कैशबैक अकाउंट डेबिट टू माधुरीज कैपिटल टू मनीषाज कैपिटल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी, माधुरीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मनीषाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो माधुरी एंड मनीषा आर द रिसीवर एंड कैश गोज आउट, क्योंकि यहां पे क्या कर रहे हैं लोग, गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर से निकाल रहे हैं। ठीक है, सो ये भी एक एडजस्टमेंट हो गई। अब हमें खाली इसका दूसरा इफेक्ट है ना, कैश में देना है, तो वो हम लोग दे देंगे बाद में लास्ट में। तो चलो मैं कैश भी लिख के रखता हूं यहां पे, कैश। तो कैश में हमारा सबसे पहले यहां पे क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना दिया है, क्वेश्चन में कैश नहीं दिया, सॉरी बैंक दिया है 20,000 है। तो बैंक का यहां पे 20,000 पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है। 1 लाख रुपीज मोहिनी कैश में लेके आई, तो बढ़ जाएगा हमारा कैश, बैंक बढ़ जाएगा। देन गुडविल भी लेके आई मोहिनी कैश में ही, तो 40,000 गुडविल का भी बढ़ जाएगा। देन उसमें से ओल्ड पार्टनर 20,000 लेके गए घर पे, लेके गए मतलब कैश कम हो जाएगा। ओके, यहां तक तो एंट्री मैंने कर दी है। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में उसका कैलकुलेशन करके आउटर में पोस्ट कर देंगे। तो ये भी हो गया दूसरा इफेक्ट। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रिवैल्यूड एट ₹66,000। तो यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिया है 10,000, सॉरी 60,000 आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, और अभी कितना हो गया 66 हो गया। लाइबिलिटी बढ़ गई, 6,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो गया, ज्यादा पे करना पड़ेगा। पहले 60,000 भरना था, अब 66,000 भरना है, मतलब 6,000 ज्यादा भरना है। तो ये क्या हो गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो पहले हम लोग लाइबिलिटी में इफेक्ट दे देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 पहले था, एड रिवैल्यूड 6,000, टोटल हो जाएगा 66,000, और यहां पे आ जाएगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000। ओके, सो ये हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट। देन अभी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है। अब क्या करना है, हमने एडजस्टमेंट से स्टार्ट किया था सॉल्व करना, सारे इफेक्ट्स भी दे दिए, दो इफेक्ट्स जो भी हो रहे थे सब दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट में आ जाना है। ओल्ड बैलेंस शीट में अभी यहां पे हमें दिया है कैपिटल अकाउंट 80,000,
1 लाख रिकॉर्ड कर लिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी रिकॉर्ड कर लिया, बिल्स पेबल बच गया है जो कि लाइबिलिटी में लिखते हैं हम लोग, जो कि 10,000 है। ओके, सो 10,000 बिल्स पेबल है। देन असेट साइड में बिल्डिंग रिकॉर्ड कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड कर लिया, स्टॉक बाकी है, स्टॉक है 48,000, तो स्टॉक हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे यहां पे। देन उसके बाद आता है डेटर्स हो गया है, आरटीडी भी हो गया है, बैंक भी रिकॉर्ड कर दिया, फर्नीचर एक बाकी रह गया, तो फर्नीचर हम लोग लिख देंगे 10,000 रुपीज। ठीक है, एक दिन में एसेट तो गायब नहीं हो जाएंगे ना, अभी फर्नीचर 31 मार्च को 2019 को 10,000 था, 1 अप्रैल को थोड़ी गायब हो जाएगा, तो वो जो एसेट्स जिसको हम लोग ने कुछ उसका एडजस्टमेंट रिलेटेड नहीं था, तो वो तो सब आएंगे, तो रिकॉर्ड करना ही है। सो हियर आई हैव रिकॉर्डेड फर्नीचर एज 10,000 रुपीज। ओके, नाउ आई हैव टू डू एडजस्टमेंट ऑफ बैंक। सो बैंक की तो सारी एडजस्टमेंट हो गई, बिकॉज कैश और कैश से रिलेटेड है, ये गुडविल भी कैश में लाया था, वो भी रिकॉर्ड कर दिया है, तो हम लोग इसको बैंक को भी क्लोज कर देते हैं। 1 लाख 1,20,000, 1,60,000 में से 20 जाएगा, 1,40,000 आपका यहाँ पे बैंक का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये पोस्टिंग सब समझ में आ गई। अब क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करना है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या किया, पूरा फॉर्मेट ड्रॉ किया, सेकंड पार्ट में हम लोग ने एडजस्टमेंट किया, थर्ड पार्ट में हम लोग ने बैलेंस शीट सॉल्व किया। अभी फोर्थ पार्ट जो है हमारा, वो क्या है, पूरा हम लोग को क्या करना है, बैलेंसिंग करके बैलेंस शीट को टैली करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अभी देख सकते हो 28,000 है टोटल क्रेडिट साइड की, और 12 2 14 6 20 है, मतलब ये 28,000 ही बड़ी है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी मैं 28,000 ही रिकॉर्ड करूंगा। 12 2 14 6 20, मतलब 8,000 रुपए मेरा यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। अच्छा, क्रेडिट साइड बड़ी है, प्रॉफिट की साइड बड़ी है, लॉस की साइड कम है, फिर भी यहां पे क्या आ जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट। सो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसमें आ जाएगा, माधुरी और मनीषा में जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर 3 पार्टनर में क्यों नहीं जा रहा है, अरे ये जो रिवैल्यूएशन हुआ है मोहिनी के आने के पहले ये रिवैल्यूएशन हुआ है, और जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होता है दैट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, बिकॉज वो सब ओल्ड पार्टनर्स का होता है। ये मेरे थर्ड या फोर्थ पार्ट में मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में बताया है। ठीक है, सो यहां पे आ जाएगा माधुरीज कैपिटल। ठीक है, मनीषाज कैपिटल। ओके, सो 8,000 रुपीज हमें ट्रांसफर करना है, 8,000 हमारा यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। अभी 8 को हमें बांटना है ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को बांट रहे हैं। ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2, तो 3:2 है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। चलो 8:2 3/5 एंड 2/5 हमने करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये वर्किंग नोट हो गई है। चलो मैं आपको दिखाने के लिए कर देता हूं कैलकुलेशन। 8,000 को हमें क्या करना है, 3/5, 8,000 को 2/5, तो 5 1 जा 6 जा 1600 होता है, यहाँ पे भी 1600 ही आएगा आंसर। 16 3 जा 48, 16 2 जा 32। ओके, सो यहाँ पे 4,800 कैपिटल माधुरी केस में जाएगा, और मनीषा कैपिटल में 3,200 जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये अभी हम लोग वर्किंग नोट हटा देते हैं, बिकॉज वो इसमें नहीं करना होता है, ये जस्ट आपको बताने के लिए, बिकॉज बोर्ड पे जगह नहीं है। ठीक है, सो 4,800 एंड 3,200 विल बी ट्रांसफर्ड हियर, अपोजिट साइड में जाते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा बाय, क्या लिखेंगे, कहां से आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में माधुरी केस में लिखेंगे 4,800, मनीषा केस में 3,200। ठीक है, तो ये ट्रांसफर हो गया। अब ये अकाउंट अभी करना है हमें बैलेंस। ठीक है, ये अकाउंट बैलेंस करना है, तो मुझे तो टोटल यही साइड की, क्रेडिट साइड की ही बड़ी दिख रही है, डेबिट साइड की छोटी टोटल है। 1 लाख यहाँ पे है टोटल मोहिनी के कॉलम में, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा बैलेंस सेम अमाउंट आ जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख रुपीज। ओके,
देन 1,20,000, 1,23,000, 200, ठीक है। सो यहाँ पे भी 1,23,200 आएगा और उसमें से माइनस हो जाएगा 10,000, तो बैलेंस आ जाएगा 1,13,200। देन 80 प्लस 20, 1,04,800 आता है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी 1,04,800 आएगा और माइनस कर देंगे 10,000 से, सो बच जाएगा 94,800। ओके, सो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ये बैलेंसिंग आ गया, ये नया कैपिटल मिल गया। अब ये नया कैपिटल कहां पे जाएगा, हमारे लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा माधुरी, मनीषा, मोहिनी। ओके, और आ जाएगा 94,800, 1,13,200, देन 1 लाख रुपीज। ठीक है, सो ये आ जाएगा यहाँ पे टोटल 1,13,200, 1,14,000, 1,18,000, 1,18,000 एंड 2,08,000, थिंक 3,08,000 आना चाहिए यहाँ पे टोटल। ठीक है, सो 3,08,000 है टोटल, आ जाएगा 3,08,000, 3,14,000, 24 एंड 24, 3,84,000 आपका यहाँ पे लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है। सेम वे असेट की भी टोटल करनी है, 1,48,96, 1,96 एंड 2,04, 2,34, 2,44, 2,84, 3,84, तो यहाँ पे भी टोटल आ जाती है 3,84,000। तो इस तरीके से ये न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन टैली होता है। ओके, सो आई होप आपको ये सम समझ में आ गया रहेगा। ये स्पेशली आप लोगों के लिए ही सम बनाया गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। ओके, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।